Well, let's begin with studying about adolescence and drug or alcohol abuse. So, what basically happens in your adolescence phase when someone is being addicted to drug or the alcohol? Fine. So, that is drug and alcohol abuse. Adolescence means both. So first of all, we shall be talking about what do we mean by adolescence. So it is a period of both a period and a process. Fine, adolescence is not just a phase, it is a period that is along with a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs for effective participation in the society. So basically, a period or a process wherein a child develops into a mature person, fine, and starts developing like his attitudes and beliefs. That is, it starts attitudes as in starts understanding what is right and what is wrong, fine, and similarly starts giving his or her opinion on given situations. So it is a process and a period of maturity, of development in terms of attitudes and beliefs for a given condition, fine, and start taking part and starts putting his or her opinion to a given situation in the society. The period between 12 to 18 years of age may be thought of adolescence period. Yes, it's basically once the puberty starts till the age of 18. Fine. So when the person comes into the age of about say 12 to 18 years of age, that's an adolescence age. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. That is, it binds the childhood and the adulthood. It is a phase which connects the childhood and the adulthood. Adolescence is accompanied by severe biological and behavioral changes. Yes, as I said, in those years, that is starting from 12 years, that is a girl and a boy attains maturity in terms of various like say physical, mental, then sexual, fine, all the characteristics develops in this ages. Adolescence and starts developing biological changes as well as behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental psychological development of an individual. So it's a very important phase wherein everything has to be taken care about. Fine, in that phase of a child develops some wrong beliefs, some wrong attitudes, and that is going to be with that particular child forever. So that is why it's a very critical phase of life. Fine. क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर्स. सो एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर गर्ल या चाइल्ड जो बॉय होता है, उसको क्या क्या डेवलप हो सकता है. क्यूरियोसिटी होती है सब कुछ जानने के लिए, ये क्यों होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग. फाइन. नीड फॉर एडवेंचर्स. फाइन. दे दिस पीपल, द वंस हु आर इन दिस adolescence phase, they like feel to have adventures, excitement and experimentations, because they are at the urge of knowing everything. Fine. Constitute common causes which motivates youngsters towards drugs and alcohol use. So वही चीज़ है, उनको सब चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है कि भाई हम ये भी ट्राई करें, ऐसे करें, एक्सपेरिमेंटेशन से कुछ नया सीखें, फाइन, एडवेंचर्स करें, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी. एंड वही क्यूरियोसिटी के कारण वे भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट ड्रग्स, व्हाट इज़ ऑल अबाउट एल्कोहल, एंड दैट इज़ वाई दे कंज्यूम इट. They for the very first time in this phase, in just order to understand, in just order to see what would happen if we take drugs and alcohol, they consume it. A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits for alcohol and drugs and use. मतलब में वो बच्चा पहली बार क्यूरियोसिटी के कारण तो ड्रग अल्कोहल ले लेता है, बट उसके साथ फिर वो क्या होता है, दैट माइट बी परसिव्ड एज बेनिफिट्स, जो उनको लगता है फर्स्ट टाइम कंज्यूम करने पे, तो उन्हें उस पर्टिकुलर बच्चे को ऐसा लगता है कि इसके तो बहुत बेनिफिट्स हैं. फाइन. तो ये बेनिफिट्स ऐसे समझ के, उसको गलत समझ के, बेनिफिट समझ के वो नेक्स्ट टाइम लेता है और फिर उसको आदत पड़ जाती है. दैट इज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़. Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experiment, but later the child start using this to escape facing problems. पहली बार जब वे लेते हैं तब
उन्हें लगता है कि भाई ये तो अच्छा है, इनसे तो हम सारी प्रॉब्लम्स भूल सकते हैं, वी गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अवर बॉडी फील्स रिलैक्स और वो सारी चीज़ें। बट बाद में क्या होता है कि बच्चा उसको बारी बारी लेने की ट्राई करता है इन ऑर्डर टू गेट अवे फ्रॉम स्ट्रेस, इन ऑर्डर टू गेट अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशंस, फिर उन्हें लगता है कि भाई एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं करेंगे, नहीं हुआ है तो दे कंज्यूम इट। फिर स्ट्रेस जब होता है तब वे कंज्यूम करने लगते हैं। तो दिस हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन परसुएडिंग द यंगस्टर टू ट्राई अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो इसी कारण अपने जो यूथ होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। द परसेप्शन अमॉन्ग यूथ दैट इट इज़ कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग्स और अल्कोहल इज ऑल्सो इन अ वे मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दिस हैबिट। जैसे कि वे देखते हैं कि भाई ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना ये तो बहुत कूल हैबिट होती है। फाइन, इट्स अ हैबिट विच शोज योर कूलनेस, बट इट इज़ नॉट सो, इट इज़ कम्प्लीटली नॉट सो। फाइन, टेलीविजन, मूवीज़, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। फिर टेलीविज़न देखते हैं, मूवी वगैरह जो होती है, न्यूज़पेपर वगैरह में ये सारी चीज़ें वे देखते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनकी वजह से उनको भी ऐसे फील होता है कि भाई हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो वही कारण। So other factors that have been seen to be associated with drugs and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and the peer pressure. Fine, so unsupportive family structure, yes. If the family is not supportive, if the family is then not one who is guiding a child, if the family is the one who is like is a not stable one, wherein everyone keeps on fighting with each another and no one has the bonding, the love with each another, then this might happen to a child. Fine. And similarly peer pressure as in the pressure that your friends give you. Fine, कि भाई एक बार ट्राई कर ले कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई कर ले कुछ नहीं होता, फिर वो एक ही बार जो होता है इट गेट्स वेरी डेडली, इट्स वेरी डेंजरस। फाइन, बिकॉज क्या होता है एक बार ट्राई करने पे फिर वो बच्चा नेक्स्ट टाइम भी करेगा, थर्ड टाइम भी करेगा, एंड देन इट बिकम्स एन एडिक्शन. So it's very 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 wrong. Similarly, moving ahead with the next one, that is addiction and dependence. सो जब हम वही चीज़ है कि बारी बारी लेने पे फिर क्या होगा, एडिक्शन होगा और फिर वो बच्चा उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ परसिव्ड बेनिफिट्स, परसिव्ड जो है नहीं पर उनको लगते हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं, कोई बेनिफिट्स है नहीं, वे इनका हार्म ही करते हैं. फाइन, तो बिकॉज ऑफ द परसिव्ड बेनिफिट्स ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली, मतलब में वो बारी बारी रिपीटेडली यूज़ करता है वो बच्चा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स. चलो बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें कोई बेनिफिट है कि भाई हम स्ट्रेस भूल जाते हैं, अपना प्रेशर भूल जाते हैं, फाइन, ये सारी चीज़ भूल जाते हैं, हमें साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है. बट चीज़ जो याद रखनी है वो क्या है कि उसका एक नेचर है. क्या उसका नेचर है? एडिक्टिव नेचर. कि आपने भूल से भी उसके एक बार कंज्यूम कर लिया तो फॉर श्योर वो आप सेकेंड टाइम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसका नेचर ही एडिक्टिव है. फाइन, वो हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो इनको बाइंड करते हैं, वो इनसे एडिक्टेड हो जाते हैं और हमें फिर ये चीज़ लेनी ही पड़ती है. एडिक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट. तो एडिक्शन का मतलब क्या होता है? तो एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है. साइकोलॉजिकल मतलब है हमें मेंटली ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे तो अब करना ही है, मैं तो मुझे इसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा. तो एडिक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. तो एडिक्शन क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है जिनसे हमें क्या लगता है कि भाई एक टेम्पररी फीलिंग आती है कि हमें थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा इसको लेने पे, फिर हम हमारा स्ट्रेस भूल जाएंगे, पेन भूल जाएंगे. तो वही होता है एडिक्शन. दिस ड्राइव्स पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड और इवन व्हेन देयर यूज बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. फिर इसकी वजह से ही लोग क्या करते हैं? इस एडिक्शन की वजह से जब ज़रूरत नहीं है बॉडी को तब भी कंज्यूम करते हैं और उन्हें पता है कि ये मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है फिर भी लेते हैं. विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीजेस.
देखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार लिया, जैसे कि ड्रग्स अल्कोहल लिया है किसी पर्सन ने, तो पहली बार उसको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक फाइन, उसे इमीडिएट उसके पेन सारे रिलीव हो जाएंगे, उसको अजीब सा भी लगेगा। सेकेंड टाइम लेने पे उसको थोड़ा और वो एकदम इजीली उसको कंज्यूम कर पाएगा, थर्ड टाइम लेने पे और इजीली कंज्यूम कर पाएगा। तो दैट इज़ हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो इनको पकड़ते हैं, जो इनको बाइंड करते हैं और फिर अपना एक्शन दिखाते हैं, तो वो रिसेप्टर्स इनसे बहुत टॉलरेंट हो जाते हैं। फिर वो ऐसे समझने लगते हैं रिपीटेड यूज़ पे, ये ड्रग्स की बात जो हम करते हैं, रिपीटेड ड्रग्स जो यूज़ होते हैं, फिर रिसेप्टर्स इससे बहुत एक्वेंटेड हो जाते हैं और बॉडी को फिर कुछ नया नहीं लगता, फिर वो उनके लिए एक रेगुलर पैटर्न बन जाती है। फाइन, कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन। जैसे कि पहले थोड़ा सा भी ड्रग या अल्कोहल लेने पे बॉडी पे असर होता था, फिर जो रेगुलर कंज्यूमर हो जाते हैं तो उनके लिए उनको ज़्यादा डोज लेने पड़ेंगे, तभी हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स उसको अंडरस्टैंड करके वे एक्शन दिखाएंगे। फाइन, जैसे कि यूफोरिया है, फिर वेल बीइंग है, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है, थोड़ी टाइम के लिए अच्छा लगेगा, तो वो सब कब होगा, जब हाई डोज लेंगे तभी होगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार छोटे छोटे डोजेज में भी बॉडी को असर दिखेगा, बट फिर वो इतने एडिक्टेड हो जाएंगे, बॉडी के रिसेप्टर्स इतने टॉलरेंट हो जाएंगे, फिर ज़्यादा डोजेज लेने पड़ते हैं। फाइन, however it should be clearly borne in mind that the use of these drugs even once can be forerunner to addiction. Thus the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a viscous circle leading to their regular abuse from which he or she may not be able to get out. So पहली बार ही कंज्यूम करना बहुत डेडली होता है, प्लीज़ 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 डू नॉट डू इट। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग, कोई गाइडेंस ना हो, कोई काउंसलिंग ना हो, द पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन देयर यूज। जब काउंसलिंग ना हो तो पर्सन का क्या हो जाता है, पर्सन इस पर एडिक्ट हो जाता है। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। अब नेक्स्ट पार्ट है डिपेंडेंस। फाइन, तो पर्सन उस पर डिपेंडेंट हो गया है। तो डिपेंडेंसी क्या होती है, तो इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट विड्रॉवल सिंड्रोम। डिपेंडेंस क्या होती है कि भाई अब वो पर्सन उसको छोड़ना भी चाहे, तो जब छोड़ने की लिए ट्राई करेगा तो भी उसके बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे। फाइन, जैसे कि यू मस्ट हैव सीन द मूवी संजू, वेरन ही tried to, that particular person tried to escape from the drugs, and what happened, he started developing so many other symptoms. So those are the withdrawal symptoms, withdrawal syndromes. उनकी बॉडी शेक करती है, वे रह नहीं पाते, they feel depressed, they do not like to talk to anyone. So that is the डिपेंडेंट हो गए उन पे। फाइन, तो जब छोड़ने की ट्राई करेंगे तो उनके ऊपर विड्रॉवल सिंड्रोम हो गया और वो भी वेरी अनप्लीजेंट होते हैं। फाइन, दिस इज़ कैरेक्टराइज, उनमें क्या होता है, एंग्जाइटी दिखती है, शेक, बॉडी शेक होता है, नॉशिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग विच मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज्ड इज रिज्यूम्ड अगेन। ये सारी चीज़ें फिर वापस कब काम डाउन होती है, जब वो डोज लेते हैं तभी उनको रिलैक्स लगता है। तो आप सोच सकते हो कि उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, तो इससे अच्छा है कि हम उसको कंज्यूम ही ना करें। इन सम केसेस विड्रॉवल सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग। ऐसा होता है, विड्रॉवल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको मेंटल इफेक्ट भी होते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग, किसी पर्सन की तो जान भी ले लेता है जब ये छोड़ने की ट्राई करते हैं तो। एंड द पर्सन में नीड मेडिकल सुपरविजन, फिर उनको असाइलम वगैरह में डाला जाता है, जिनसे उनको बहुत सारी थेरेपीज दी जाती हैं और फिर उसके बाद उनको क्योर किया जाता है। डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू that is satisfy his or her needs. This results in many social adjustment problems. मतलब ये डिपेंडेंस इतनी सारी है कि अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उस पर्सन को पैसे तो चाहिए, सफिशिएंट फंड चाहिए, तो उस सफिशिएंट फंड के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, ड्रग्स अल्कोहल परचेज करने के लिए वो पर्सन सारे सोशल नॉर्म्स भूल जाएगा। मतलब में सोशल नॉर्म्स मतलब में जो चोरी करना है वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी दैट पर्टिकुलर पर्सन स्टार्ट्स, एंड वो पर्सन एथिकली भी फिर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और वो चोरी भी करेगा, पैसे कहीं से भी लाएगा और फिर उसको ये एडजस्ट करेगा। तो इससे अच्छा है, इन सारी चीज़ों से गुजरने से तो अच्छा है एडिक्शन ना हो, डिपेंडेंसी ना हो, फिर उसे छोड़ने के विड्रॉवल सिम्टम्स ना हो, इससे तो अच्छा है कि हम ये चीज़ों को छुए ही नहीं। बराबर। इन द कमिंग क्लास वी शैल बी स्टडिंग अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। थैंक यू।